Viruses, vital information resources under seas. Vital information resources under seas. Now, what is the information? Do you mean by information? Information means the data that is been processed and saved in your computer system. कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेस किया हुआ है जो सेव है उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन. Now comes water resources. Resources are the various devices are connected to a computer system. कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होने वाले सारे इंफॉर्मेशन, सारे डेटा को बोल रहा है इंफॉर्मेशन. और जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, पेरिफेरल्स, प्रिंटर्स, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, then maybe scanner, or even your audio system, the video system, कुछ भी कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, those are called resources. Now, viruses, viruses, vital information resources under seas. Vital means important. जरूरी जो इंफॉर्मेशन है, जो रिसोर्सेज है, वो सीज हो गया. सीज का मतलब क्या? एकदम अनयूजेबल, अनयूजेबल हो जाता. वायरस क्या करेगा? जितने भी डेटा है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी सोर्सेस है, सबको क्या करेगा? से नहीं. That is the symptom of virus. Now, what is a virus? Don't think of COVID virus. हम लोग जानते हैं कोविड वायरस क्या है, जिसके चलते सब लोग परेशान भी है. Now, biological virus, they infect the humans, the living things, not the humans, and other animals. Some of you are disturbing. So first, let me mute you all. I was saying that biological viruses infect the human body, or it is not only necessary that the virus will be virus also infects different animals. Now, but computer virus, that is not like virus. Biological virus are living things. They are living organisms. But computer virus are not living. Are not living. Yes, Afifa. Sir, I'm not able to hear you properly. Whether the sound is low or something else. Sir, now I can hear you. Okay, now you can hear me. That means I was sitting away from the microphone. Okay, okay, then I'll be sitting over here only and explaining. So, okay, now yes, Deepshika. Deepshika, you have a problem? Sir, something like air, your sound is coming. It's not coming clearly, sir. Now what is happening is actually I put on a stand fan. So let me allow. Sir, बंद कर दीजिए. हाँ हाँ हाँ, बस वही करने वाला है. Sir, और सर न्यूमेरिकल्स नहीं कंप्लीट किए थे ना? नहीं किए थे. ओके, हम भेज देंगे पीडीएफ. नहीं सर. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पीडीएफ है मेरे हाँ. पास, हम भेज देंगे.
और थोड़ा कभी प्रॉब्लम होगी तो हाँ फिर बाद ठीक। में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक, ओके, नाउ यू कैन लिसन मी क्लियरली। अभी कैन यू लिसन मी क्लियरली नाउ? अभिनव, आनंद, बताओ, सुनाई दे रहा साफ? नहीं, okay, hopefully you can listen me clearly now. So we were talking about the virus, isn't it? So computer virus and biological virus. Biological viruses are the viruses, those are living beings, they infect the living creatures. But computer viruses, they are not living organism. Instead, they are codes, computing codes, programming codes. Those codes are destructive in nature. Means we write a program to create something, to perform something useful, to perform something fruitful. But some people or some codes can be used to destructive purpose. कंप्यूटर को खराब करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग फाइल को डिलीट कर देंगे, we can easily delete the files. We can block the audio system. We display some messages on the screen to not allow other messages or the screen to come up or other operations to be visible on the screen. So this way, codes, those are programming codes, computing codes. Those are, and they are designed to perform some destructive behavior. Those we say viruses. Now, when we talk about viruses, as same as the biological viruses as variety, we know it. virus में variety है, जैसे HIV virus, I think all of you know, जिससे AIDS होती है. Then you have virus like क्या बोलेंगे इसको, अभी जो पैंडेमिक फैला हुआ है, कोविड वायरस है. There are various viruses, say chicken pox, say polio. So these all are viruses. कुछ viruses तो दुनिया से खत्म हो चुका है, कुछ viruses खत्म हो चुका है दुनिया से. For example, you take the example of polio virus. Polio virus is nowhere now in all over the world. पूरे दुनिया में कहीं पे पोलियो वायरस अब दिखता नहीं है. Then you can say about that plague, अभी नहीं होती है. क्यों? क्योंकि ये सारे का ट्रीटमेंट करेक्ट किया जा चुका है. कंप्यूटर वायरस का भी ट्रीटमेंट है, मगर उसको खत्म नहीं किया जा सकता. जैसे ही बायोलॉजिकल वायरस जैसे नया वैरायटी में आते रहता है, ह्यूमन बीइंग को या एनिमल्स को अटैक करते रहता है. सिमिलरली कंप्यूटर वायरस आज बना, हो सकता है 2 दिन बाद उसका तोड़ भी मिल जाएगा. We have create the antidote, we create the antivirus of that particular virus, but then again someone creates another code, another kind of destructive code, another kind of destructions can be done. So this way the virus varies in computer also. Now, types of viruses. Now, when we talk about the types of viruses, the basic types जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं, उसमें से जो हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, उसमें से पहला है बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वायरस. नाउ व्हाट इज बूट? बूट का मतलब क्या है? जूता नहीं है, BOOT बूट. हम लोग समझते हैं कभी कभी जूता, नहीं, not the shoes. Boot in computer refers to starting up the computer. स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर. हम लोग जब कंप्यूटर का स्विच दबाते हैं, चाहे लैपटॉप हो, पीसी हो, इवन यू मे टेक योर मोबाइल फोन को जब ऑन करते हैं या पीसी लैपटॉप को जब ऑन करते हैं, तो देखना तुरंत स्क्रीन नहीं आ जाता. और स्क्रीन आता भी है तुरंत, अगर स्क्रीन आता भी है तो क्या होता है कि उस पर हम लोग तुरंत काम स्टार्ट नहीं कर सकते.
it takes some time to create you, to give you the platform to work on, isn't it? And during that time, from pressing the switch to give you the platform to work, during that time, the computer does a lot of work behind you. The screen हम लोग के जानकारी के बिना बहुत कुछ करता है. क्या करता होगा, क्या क्या करता होगा, ये सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है. सारा कंपोनेंट्स कंप्यूटर के साथ जितना कुछ लगा हुआ है सबको चेक करता है अंदर ही अंदर, कि भाई काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. अगर काम नहीं कर रहे तो हम कंप्यूटर को चला करके दूसरे जो आदमी सामने बैठा है उसको कैसे दे, कैसे वो काम करेगा. सो व्हाट हैपेंस, it actually checks every component of the computer. Even when we switch on the mobile phone, मोबाइल फोन भी ऑन करने के बाद देखना एंड्रॉयड लिखा हुआ स्क्रीन आ जाता है, या एप्पल लिखा हुआ स्क्रीन आता है, या एप्पल का सिंबल आता है. उसके बाद थोड़ा देर रुकना पड़ता है, तब जा करके स्क्रीन में हम लोग का एप्स दिखता है. तो इस ड्यूरेशन में क्या करता है, मोबाइल फोन कैमरा चेक करता है, स्क्रीन चेक करता है, लाइट चेक करता है, उसका ऑडियो सिस्टम चेक करता है, उसका वीडियो सिस्टम चेक करता है, सारा चीज को चेक कर लेता है. उसका इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करता है, उसमें सिम कार्ड है कि नहीं है चेक करता है, सिम कार्ड का नेटवर्क को जोड़ता है. ये सारा चीज वो बैकग्राउंड में कर लेता है. Then it creates the platform, then it shows you the apps. Similarly in computer also, कंप्यूटर में भी सेम यही काम होता है. कंप्यूटर जैसे ऑन करता है तो सबसे पहले क्या करता है, इसका ऑडियो सिस्टम, वीडियो सिस्टम, कीबोर्ड, माउस, देन से द पावर सप्लाई, द बैटरी, द printer, the ports, the modems, the LAN cards. Is the LAN connected? Is the external audio connected? It checks everything. And this process is called booting process. And when all the things are checked, it gives you the desktop. तब जा करके desktop का screen आता है. So this process is called boot. And booting informations are stored somewhere else, but not in the hard disk which you access. ये जो booting instructions होती है, booting instructions हार्ड डिस्क का उस हिस्से में स्टोर नहीं होता है जहां पे हम लोग काम कर सकते हैं, उस हिस्से में नहीं होता है. वो हार्ड डिस्क में एक अलग पोर्शन में, अलग पार्टीशन में रहता है, जो हम लोग को कभी दिखता ही नहीं है, विंडोज से कभी देख ही नहीं सकते. Those who have bit idea about installation of operating systems, अगर कभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स किसी को इंस्टॉल करते हुए देखा होगा या थोड़ा बहुत जानकारी जिसको है, so they can understand that whenever we create the partition of a certain hard disk or any other secondary storage device, it stores a certain block of code, certain block, it reserved location रहता है. जैसे मान के चलो, I give you an example, तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा. You buy a pen drive of 16 GB. तुम एक 16 GB का पेन ड्राइव खरीद के लाया, ठीक है. अब उसको कंप्यूटर में लगाओ, लगाने के बाद तुम उसका मेमोरी साइज चेक करो, वो बताएगा 14.3 GB. वो तुमको बताएगा 14.3 GB, 14.6 GB. भाई बाकी मेमोरी कहाँ गया? हम तो 16 GB खरीदे थे, मिल रहा है 14. बाकी दिस लोकेशन, ये जो 1 GB, 1.25 GB या 1.5 GB जो स्पेस है पेन ड्राइव का, वो क्या होता है? वो होता है बूट पार्टीशन. क्योंकि पेन ड्राइव को भी स्टार्ट होना होगा, वो भी एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है. और कुछ लोग पहले पढ़ाए थे एम्बेडेड सिस्टम,
याद आ रहा है? शायद कोई पूछा भी था, सर एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? ये है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। उसमें क्या है, हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी लगा हुआ है. सो दोज पार्टीशन, the virus, the boot virus actually infects the boot sector of the computer. मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट होने ही नहीं देगा. समझ में आ गया होगा? Example is there given for boot sector virus. You can see in the book also, as many of you don't have the book. So disk killer, stone virus, disk killer या stone virus, ये दो क्या है, boot sector virus है. Then comes program file virus. Now program file virus क्या है? हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत सारे, MS Word, MS Excel, PowerPoint, Paint, then QBasic, then say logo, बहुत 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 सारे सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं. अभी जूम यूज कर रहे हैं, बहुत लोग लैपटॉप से भी आता है, जूम ज्वाइन करता है. Those who are smart, those who knows how to join. So these people, we are using a lot of softwares, and those softwares has a file which executes, जो run करता है, उस फाइल को बोलते हैं प्रोग्राम फाइल्स. Now some viruses are there, those corrupts the program file. वो प्रोग्राम फाइल को ही करप्ट कर देता है. अब प्रोग्राम फाइल को करप्ट करेगा तो क्या होगा? हम लोग प्रोग्राम फाइल मान लेते हैं, एक प्रोग्राम फाइल वायरस मेरे कंप्यूटर में आ चुका है. तो प्रोग्राम फाइल को वायरस जब आएगा, when there is a program file virus, we will obviously execute the program. प्रोग्राम को तो एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे. अब जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, वो वायरस क्या करेगा, अपना ही रेप्लिकेशन प्रोड्यूस करेगा, अपना ही कॉपी प्रोड्यूस करेगा, और वो कॉपी क्या होगा, अलग अलग प्रोग्राम फाइल्स के साथ जाकर के चिपक जाएगा और प्रोग्रामिंग कोड को बदल देगा. करना कुछ और था, करेगा कुछ और लास्ट में क्या होगा, हमारे कंप्यूटर से जो काम हम लोग करवाना चाह रहे थे वो काम नहीं हो पाएगा. These are called program file viruses. Some example are given: Sunday, Cascade, etc. Now, okay, program files viruses, they affects the file extensions or the files like .com वाले फाइल को affect करता है. And this .com is not the com of website वाले .com नहीं. .exe, .olv, .drv, .sys, ये सारे फाइल्स को क्या करता है, प्रोग्राम फाइल वायरस अफेक्ट करता है. मल्टी पार्टिट वायरस, अगला जो है मल्टी पार्टिट वायरस. ये मल्टी पार्टिट वायरस क्या है? ये एक ऐसा वायरस है जो बूट सेक्टर और प्रोग्राम फाइल्स दोनों को अफेक्ट कर सकता है. मल्टी पार्टिट वायरस जो है, बूट सेक्टर वायरस या प्रोग्राम फाइल वायरस, दोनों का मिक्सचर, हाइब्रिड टाइप है. ठीक है. दे इन्फेक्ट द स्टोरेज मीडिया, द बूट सेक्टर, द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, द कंप्यूटर मेमोरी, ये सब को अफेक्ट करता है. These viruses move into the hard drive, infects the boot sector and start spreading itself into the system, infecting the executable files.
ये सारे वायरस क्या होता है, इस टाइप का जो मल्टी पार्टेड वायरस है, ये क्या करता है, जैसे ही कंप्यूटर में घुसता है, अगर कहीं से घुस गया तो क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा बूट सेक्टर में, और बूट सेक्टर में पहुंचने के बाद क्या करेगा, अपना ही कॉपी बनाएगा, अपना ही रेप्लिकेटेड कॉपी बनाएगा, और कॉपी बना के एक एक कॉपी क्या करके एक एक प्रोग्राम फाइल के साथ चिपकते चल जाएगा और सारे प्रोग्राम फाइल्स को करप्ट कर देगा। और जैसे ही कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, ये फिर से अपना कॉपी बनाएगा। अब जब सारे कॉपीज, सारे प्रोग्राम फाइल्स, बूट सेक्टर सारा भर जाएगा, तब ये क्या करेगा, तब ये मेमोरी को भरना शुरू कर देगा, तुम्हारा हार्ड डिस्क को भरना शुरू कर देगा। तो हार्ड डिस्क का साइज क्या होगा, ड्रास्टिकली, बहुत अचानक से क्या होगा, गिरना स्टार्ट होगा। तुम्हारा रैम मेमोरी ब्लॉक हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर हैंग करेगा। एग्जाम्पल्स, इन्वेडर, फ्लिप, टकीला, ये सारे वायरस का नाम है। देन कम्स मैक्रो वायरस। तो व्हाट आर मैक्रो वायरस आर? मैक्रो वायरस, मैक्रो एक्चुअली क्या है बता देते हैं। Wizard to perform very small task, we say them macro। कुछ काम, जो काम हम लोग फ्रिक्वेंटली करते हैं, जो काम हम लोग फ्रिक्वेंटली करते हैं, और उस काम को करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिए अपने, हम लोग बना सकते हैं। एमएस वर्ड में भी ऑप्शन है, एमएस एक्सेल में भी ऑप्शन है कि हम लोग मैक्रो बना सकते हैं। बहुत आसान है, तो तुम भी बना सकते हो, हम भी बना सकते हैं, ऑप्शन है। वी डोंट नो दैट, पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाया नहीं गया होगा, मगर कभी एमएस वर्ड खोल लेना, खोल करके उसका टूल्स में जाओगे, टूल्स ऑप्शन, एमएस वर्ड का टूल्स ऑप्शन में देखना मैक्रोस होती है। बहुत सिंपल है बनाना, बहुत ही सिंपल है। एक प्रोग्राम, एक पर्टिकुलर टास्क है जो हम लोग बार बार यूज करते हैं, तो उसको जल्दी जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो बनाते हैं। एंड दिस macro viruses are the virus those comes and attached to this in the executable files। अब क्या होगा, वो काम खुद ब खुद करेगा। Now what are the macro viruses, थोड़ा सा हम रीडिंग पढ़ देते हैं। The virus infects the files which are created using such application softwares that supports macros such as Word, Excel, PowerPoint। ध्यान में आ गया जो हम बोले थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में मैक्रो बना सकते हैं। तो ये मैक्रो वायरस क्या करता है, यही सारे फाइल जिसमें मैक्रो बन सकता है, उसी में जाकर के वो अटैच होता है। उसके बाद क्या होता है, ए मैक्रो इज ए सीरीज ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेप्स दैट अलाउज ऑटोमेशन ऑफ मेनी एक्शन विथ ए सिंगल की स्ट्रोक। एक की दबाने से बहुत सारे स्टेप्स ये कर जाता है। When the infected document is opened, the macro virus gets loaded into the main memory. Once a macro gets activated in your computer, every document you produces will become infected। मतलब एक बार मैक्रो वायरस मेरे कंप्यूटर में घुस गया, से वर्ड वाले मैक्रो घुसा, एमएस वर्ड वाले मैक्रो मेरे कंप्यूटर में घुस गया, तो जितने भी एमएस वर्ड का फाइल हम बनाएंगे, सब में मैक्रो वायरस आ जाएगा। मेरा हर फाइल में मैक्रो वायरस होगा। अब ये फाइल हम किसी और को भेज दिए, ठीक है, हम किसी और को भेजे, वो जैसे ही मेरे फाइल को ओपन करेगा, उसके कंप्यूटर में भी मैक्रो वायरस घुस जाएगा। तो इस तरीके से मैक्रो वायरस फैलता है, ठीक है। नाउ सिम्पटम्स ऑफ वायरस,
वायरस है कैसे पता चलेगा? कोविड है कैसे पता चलेगा? सर्दी होगी, खांसी होगी, स्मेल चल जाएगा, टेस्ट चल जाएगा, बुखार आएगा, बदन हाथ दर्द करेगा, माथा दर्द करेगा, कुछ तो लक्षण होगा ना कि हमको कोविड हुआ है। सिमिलरली कंप्यूटर में भी वायरस अगर लगे उसका भी लक्षण दिखेगा। क्या क्या लक्षण हो सकता है? कंप्यूटर स्टार्ट्स डूइंग थिंग्स ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर शुरू होगा, वो अपने आप कुछ कुछ करते रहेगा। लाइक मूविंग द कर्सर ऑल बाय इटसेल्फ। कर्सर अपने आप चल मूव करना शुरू हो जाता है। हमको लेके जाना था कहीं, वो पहुंच जाएगा कहीं। ये जरूरी कि हर समय मैं वायरस के चलते ही हो। समटाइम्स यू मे हैव सीन यू हैव प्लेस द माउस ऑन द 10 मिनट बचा है, ठीक है। तो पहले हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, फिर सिम्टम्स का चर्चा करेंगे। पहले अटेंडेंस, बाद में सिम्टम्स। So let me take the attendance. There are 29 students in the class today. One left. एक जन छोड़ के गया, तो 7B, 7C, 7B. Let me put on the spectacles. First one in the class today is Avinav Anand. Then Avinav Kumar. Then we have Avinav Raj. Avinav Raj. ये अभिनव राज डेली क्लास में आ रहा है, मगर बच्चे का नाम नहीं दिख रहा है। रे अभिनव, मैं क्या करूं बताओ? तुम डेली आ रहे हो, आई एम वाचिंग यू फॉर द लास्ट फ्यू डेज एंड देयर इज नो स्पेस इवन टू राइट योर नेम। अभिनव, आई कैन नॉट हेल्प यू मैन। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं 7C AVINAV अभिनव राज। अभिनव राज लगातार 3-4 दिन से प्रेजेंट हो रहा है, मगर उसका अटेंडेंस ही नहीं दे पा रहे हैं। सो एनीवे, हम आज दे देते हैं, सब दिन का दे देंगे एक बार में, ठीक है। देन अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार है। देन वी हैव अफीफा मकसूद, अफीफा मकसूद। उसके बाद है अक्षय कुमार, अक्षय कुमार के बाद अरुण कुमार, अरुण कुमार। देन अशद रहमानी, MD अशद रहमानी फॉर द फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग द क्लास। क्यों आया? तुमको कंप्यूटर सब आता है? अरे आ गया रे बेकार में। आयुष राज, आयुष Ayush Raj. Yes, Ayush Raj is there. Then Deepika Tudu. Deepika Tudu. Then we have Deepshika Pandey. उसके बाद है फरिया परवीन।
There is no one named Faria Parveen. I cannot give you attendance, my dear. A mouse. Krish Valotia. Krish Valotia. उसके बाद है मंजीत कुमार. उसके बाद है एमडी अल्शान अनवर भी है. एमडी अल्शान अनवर हो गया. उसके बाद है एमडी कैफ अहमद. Then we have Naman Anand. Naman Anand कहाँ गया? Naman Anand. Then we have Navanya Kunjal. And we have निशांत मणि सहाय. उसके बाद है प्रगति. क्या है? प्रगति सागर. I don't think anyone named as Pragati Sagar. वो भी नहीं है. Then प्रेरणा रानी ये है. And सत्यम कुमार. उसके बाद है शिवम कुमार. शिवम कुमार का तो नाम था है. शिवम कुमार है. उसके बाद है श्रेया केसरी. आप सिद्धि प्रिया. लास्ट में स्नेहा कुमारी. कुछ देश. हाँ मिल गए. कभी कभी ही आते हैं ना. स्नेहा कुमारी के बाद शुभानंद. उसके बाद है उत्कर्ष कुमार सिंह हो गया. अब है वैष्णवी हो गया. ओके सो यह 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 3 of you have a different name than the 3 of you have a different name than the register, so you will be missing attendance. I cannot help you. अब टाइम भी नहीं बचा. किसी को कोई डाउट है पूछ लो. हम लोग अगले दिन करेंगे सिम्टम्स ऑफ वायरस. यस अफीफा. Yes, sir. Sir, I want to ask that, can a computer hang or hack the system? Hang, HANG. Computer, the virus. Actually, what happens when the virus enters the computer system, it keeps on doing its own work. वो अपना ही काम करते रहता है. And it do not allow any other program to perform its task. That's why what happens, the memory gets occupied, the CPU gets occupied, and what happens, we think that the computer is working very slow. Actually, computer is not working slow. It is working to its full potential, but it is only executing the virus file. So that situation where we were unable to perform our task, we say the computer hangs. HANG. Hang. Hopefully it is clear, Afifa. Sir, my body is... Yes, sir, messed down. Okay. Deepshika.
Sir, what happened when virus infected? What happens if the virus infects our computer? It depends upon the type of virus. It depends upon the types of virus. As I said to you, if it is a boot sector virus, it do not allow your computer to start. अगर boot sector लगा तो तुम्हारे कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा. अगर हुआ भी, मान के चलो कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, तो स्क्रीन पे आएगा योर कंप्यूटर इज अ स्टोन. कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ पूरे स्क्रीन में दिखेगा योर कंप्यूटर इज स्टोन. अब तुम क्या करोगे? कोई काम कर सकते हो? नहीं कर सकते. This is boot sector virus. It do not allow the computer to start. If it is a executable file virus, अगर executable file virus है तो क्या करेगा? अभी अभी बताए, वो खुद ब खुद सारा काम करेगा, बाकी किसी को कोई काम करने नहीं देगा. तो क्या होगा? कंप्यूटर हैंग करेगा. अगर वो मैक्रो वायरस है तो क्या होगा?